What does it mean to be in Christ? मसीह में होने का अर्थ है क्या? ये धर्म में होने का मतलब नहीं है। This is not to be in religion. मसीह में, To be in Christ. आप जो हैं, आपका शरीर, Your body, आप पैदा होने से पहले कहाँ थे? before you were born, where were you? कहाँ थे आप? आप अपने पिता में थे, You were in your father. थे कि नहीं? आप अपने पिता में थे। You were in your father. फिर आपके पिता के द्वारा आपने जन्म लिया। From your father, you got the birth. आपके पिता कहाँ थे? Where was your father? हाँ, आपके दादा में। In your आपके grandfather. दादा कहाँ थे? Your grandfather was आपके परदादा में। in your great आपके grandfather. परदादा कहाँ थे? Your great grandfather. आपके परदादा में। In your great great आपके grandfather. परदादा कहाँ थे? Your great आपके grandfather. परदादा में। Great grandfather. और ऐसे ही पर चलता है और आखिरी में हम पहुंचते हैं आदम के पास। And that's how we come all the way back to Adam. So where were you? आप कहाँ थे? You were in Adam. आप आदम में थे शुरुआत में. ध्यान से सुनिए, आप कहाँ थे? अब लोग कहते हैं ना विरासत मिलती है। Now people say you get inheritance. आदम से हमें विरासत मिली। From Adam we got बीमारी, inheritance. Sickness, मृत्यु और श्राप। death and curse. जो आदम के साथ हुआ, Whatever happened to Adam, क्योंकि हम आदम में थे। because we were in Adam. Because Adam, now hear this, so सुनिए। you understand. ओके, क्योंकि हम आदम में थे, Because we जो were in Adam. आदम के साथ हुआ वो हमारे साथ। Whatever happened to Adam happened also to us. Because Adam was the head of humanity. क्योंकि आदम मनुष्य जाति का सर था. Jesus is the head of new creation. यीशु नई सृष्टि का सर है. आपको समझना पड़ेगा कि क्रूस की कथा आपसे अलग नहीं है। You have to understand that the story of the cross is not separate from you. जो यीशु के साथ हुआ, Whatever happened to Jesus, जो मसीह में हैं वो उनके साथ भी हुआ। because those who are in Christ, it also happened to them. ओके, रोमियो 5:12 हम पढ़ेंगे। Romans 5:12. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, Therefore, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. आदम क्योंकि सर था, अभी इस पृथ्वी पे अलग अलग धर्म तो हैं, मगर ध्यान से सुनो, सारे धर्म यहां आते हैं इस कैटेगरी में, सारे धर्म। Because Adam was the head of humanity, and all mankind was born from him. All religion come under this category. ओके, सो अभी दो ही प्रजाति हैं पृथ्वी पे, So there are only two creations on the earth: एडम एंड न्यू क्रिएशन। the first is from Adam, and the other is the new creation. जीसस क्राइस्ट इज हेड यीशु मसीह सर है ऑफ द न्यू क्रिएशन। इस नई सृष्टि का. बाइबल कोलोसियों 3:3 में कहती है फॉर यू डाइड। भैया हम कब मरे? In Colossians 3:3 Bible says you died. When did we die? कब मरे आप? When did you die? जब मसीह मरा, When Christ died, आप मरे। you died. जब मसीह गाड़ा गया, When Christ was buried, आप गाड़े गए। you were buried. जब मसीह पुनरुत्थानित हुआ, When Christ resurrected, आप पुनरुत्थानित हुए। you resurrected. जब मसीह स्वर्ग में बिठाया गया, बाइबल कहती है पिता ने आपको भी मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाया। When Christ was lifted up and made to sit on the throne in heaven, the Bible says the Father made you sit on the throne in heaven with Christ.
ओके थोड़ी देर और. Jesus Where is Jesus now? यीशु मसीह कहाँ है? हाँ? नहीं बॉडी में नहीं है कि आत्मा में. In your spirit. बॉडी में होता तो बीमार नहीं हो सकते थे. If it was in your body, you would not be sick. सो ओके ठीक है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि ताकि आप समझो इस बात को. ये मेरा फोन है. This is my phone. ये इन माई बाइबल चला गया. This went in my Bible. ओके जब ये बाइबल नीचे गई तो मेरा फोन. When the Bible went down, the जब ये phone went बाइबल down. ऊपर गई तो मेरा When फोन. the Bible went up, the phone went up. हम लोग मसीह में चले गए. We went in Christ. जब मसीह ने शैतान को हराया तो हमने. When Christ defeated जब the devil, मसीह मर के we जिंदा defeated हुआ the तो devil. हम मर के. When Christ was जब resurrected मसीह from the पिता dead, के we दाहिने were हाथ resurrected. बिठाया गया तो When- हम भी मसीह के साथ. When Christ was made to sit at क्योंकि the right hand जो of the कुछ Father, मसीह के साथ हुआ वो आज आपकी और मेरी रियलिटी है. because whatever happened to Christ is your and my reality today. It's okay. I know some people are hearing it for the first time. मुझे पता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं बात. आप बोलोगे आपको कैसे पता? You'll say, how do you know? आपका चेहरा देख के. By looking at your faces. But that's okay. कोई बात नहीं. You will understand the gospel. आप समझोगे सुसमाचार को. स्टार्टिंग में हमने क्या देखा? परमेश्वर की एक रियलिटी है और हमारी एक पृथ्वी पे रियलिटी है. We saw how God has a reality and we have a reality on the earth. जॉन चैप्टर 3 में यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहा है और कहता है द सन ऑफ गॉड हु इज टॉकिंग टू यू राइट नाउ इज ऑल्सो इन हेवन. In John 3, Jesus talks to Nicodemus and tells him, वो मनुष्य का पुत्र जो तुझसे बात कर रहा है वो अभी स्वर्ग में है. यीशु मसीह कह रहा है वो दो जगह में एक टाइम में. वो Jesus कह रहा is है saying- परमेश्वर का पुत्र जो तुझसे बात कर रहा है वो इस समय स्वर्ग में. कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? He's telling him that I am in two places at this moment. The Son of God is in two places now speaking to you but in heaven. John chapter 3 verse 3 onwards you'll see that. यूहन्ना 3:3 से आप देखेंगे. ओके बाइबल आज क्या कहती है? जो पौलुस पत्रियां लिख रहा है ना वो आपके शरीर के लिए नहीं है. बोलो मेरे शरीर के लिए नहीं. इसीलिए लोग नहीं समझते उसको. The letters of Paul are not meant for your flesh or your body. That's why people don't understand it. Salvation did nothing to your body. उद्धार ने आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं किया. ओके क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है. That is born of the flesh is flesh. आपके पिता ने आपको कहां से जन्म दिया? Where did your father give शरीर you birth से. from? वो From कहां से flesh. आए थे? आदम से. सो आदम से जो जन्मा वो क्या है? शरीर है. So whoever is born of Adam is flesh. मगर उद्धार किसको कहते हैं? उद्धार परमेश्वर से जन्म लेना है और परमेश्वर एक आत्मा है. जो शरीर से जन्मा वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है. वो एक आत्मा है. Salvation is to be born from God. He who is born of the flesh is flesh. He is born of the spirit is spirit. जैसे जिस व्यक्ति ने आपको शरीर से जन्म दिया आप उसे क्या कहते हो? क्या कहते हो? पापा कहते हो. Just कहते as one who gave you birth in the flesh, you call them Papa or पिता, Father or Dad. पापा, अब्बा, पिता. हाँ पापा कहते हैं ना जिसने हमें शरीर में जन्म दिया. We call them Papa or Dad. ऐसे ही Similarly, एक आत्मा ने हमें आत्मा में जन्म दिया उसको भी हम कहते हैं पापा, अब्बा, डैडी. a spirit gave us birth in the spirit and we call him Abba, Papa, Daddy. Hear this. Here, सुनिए. Your father on this earth इस पृथ्वी पे जो आपके पिता हैं will be a temporary father. वो एक थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए पिता. When you will go to heaven, you both will be brothers. जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आप दोनों भाई होगे.
He will not be your father. वो आपके पिता नहीं होंगे वहाँ पे, But there will be one father in heaven लेकिन स्वर्ग में एक पिता होगा who gave birth to everyone. जिसने सभी को जन्म दिया है। How many people are getting what I'm saying? कितने लोग समझ रहे Your हैं जो मैं कह रहा हूं? earthly identity is temporary, आपकी दुनिया में जो पहचान है थोड़े समय की है, but your spiritual identity is eternal. लेकिन आपकी आत्मा में पहचान अनंत की है। You will always be a son of God for eternity. आप हमेशा अनंत तक के लिए परमेश्वर की संतान रहेंगे, उसके बेटे रहेंगे। Okay? So स्वर्ग में नहीं होने वाला ये This is not gonna happen in heaven. कि मलयाली एक तरफ, मलयाली पंजाबी एक तरफ। पंजाबीज इन वन प्लेस। नहीं 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 नहीं, No, no, वहाँ no. केवल परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। There is only sons and daughters of God in heaven. Okay? So hear this. सुनिए, आप शरीर में अभी कहाँ बैठे हो? in your body where are you sitting now? Come on, talk to me. छतरपुर में बैठे हो। कहाँ बैठे You हो? are in Chhatarpur in your body. आपके फोन से अगर अभी हम ट्रेस करेंगे, आप छतरपुर में If you मिलोगे। trace from your phone, you'll be found in Chhatarpur. मगर आपकी आत्मा ऐसी जगह बैठी है जहाँ कोई फोन ट्रेस नहीं कर सकता। But your spirit is in a place where no phones can trace it. Where is your spirit seated? आपकी आत्मा कहाँ बैठी है? Apostle Paul says, Paul the apostle said, for we are seated together with Christ far above principalities and powers and might and dominion and every name that is to be named, not only in this age but ages to come. पौलुस प्रेरित कहते हैं क्योंकि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, हर एक प्रधानता, हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक राजा और हाकिम से बहुत ज्यादा ऊपर, हर एक नाम से जो इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में होगा, उस सब से बहुत ऊपर।